बेगरज किए दुआएं सारी लग रही मुझे। राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू सेलिब्रेट चिट चैट। आज दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, a person who wears many hats. Well, we can just sum it up to say that he is an overall package of entertainment. But let's drift apart to also tell a little about him. Well, he is a singer, he is an actor, and उसके साथ साथ he's also been a host on television, a face that you would be seeing in your houses day in day out from his Saregama days also. It's a pleasure to have him, Aditya Narayan, with us over here. Hi Aditya. Hi. How are you doing? I'm good, Sakshi. How are you doing? Pretty much good. And let me just tell all our viewers also over here today ki a big congratulations to you on your new song Tere Bagair, which has crossed 7 million views so far and is still counting. Your new number that you've come out with. Well, it's been a good going for you during this pandemic. A blessing in fact. Congratulations for that. Thank you so much, Sakshi, and मैं बहुत खुश हूँ कि numbers and all okay, fine, great, but people are really enjoying the song. ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि ये पहली बार मैंने अपने अलावा created a project for my father, who is a living legend and loved and adored by the entire world and entire nation. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हम कुछ अच्छा इनोवेटिव लोगों तक पहुंचा पाए और लोग उसको इतना प्यार दे रहे हैं। Beautiful, बहुत अच्छी बात है। I was also listening to the number, मैं काफी बार सुन चुकी हूँ इस नंबर को। It's a very soft track and clearly जैसे आपने अभी कहा भी कि पापा के साथ या पापा की तरफ से आपने एक तरह से इंस्पिरेशन ली for this number. I want to ask you, recently also went Instagram live with Udit ji. How was that experience? It was good. वो थोड़े से shy हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत नया है, एक इंडिपेंडेंटली गाना रिलीज करना। मैंने खुद इस म्यूजिक वीडियो को प्रोड्यूस किया है, उनका खुद का एक चैनल होना यूट्यूब पे और उस पे कंटेंट डालना, सोशल मीडिया पे होना, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत नई हैं क्योंकि ही कम्स फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट टाइम। वो मुंबई में 1978 में आए, 1980 में उनका पहला गाना रिलीज हुआ। सो इट्स बीन मोर देन 40 इयर्स जो वो गा रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं अपने आर्ट और अपने म्यूजिक के जरिए। एंड it was a celebration. This song is a celebration of him completing 40 years in the industry. बहुत कम लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि उनको इतना सारा प्यार मिले देश और दुनिया से और इतने सालों तक मिले, इतने डेकेड्स तक मिले। So I wanted to do something really special for my father, and उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही, आई रिमेम्बर के पापा और मैं चाय पी रहे थे और वो बोल रहे थे कि यार आदित्य, ये नानू बुलाते हैं वो मुझे एक्चुअली, नानू ये सब कैसे करते हैं, ये क्या होता है, यूट्यूब चैनल क्या होता है, ये स्ट्रीमिंग क्या है। तो मैंने उनको सब समझाया और मैंने बोला कि आप इन सब चीज़ों की चिंता मत लीजिए, आप वो करिए जो आप बेस्ट करते हैं, आप गाना गाइए, बाकी आप मेरे को छोड़ दीजिए। क्योंकि ऑब्वियसली I belong to we all belong to the digital era, and we are born into phone and tablet and social media, internet and all those things. And thankfully मैं भी अभी मुझे I think almost 6 साल हो गए that I've been making independent music and music videos. So I had a fair idea. I had my own label, I have my own production company, and most importantly मैं बहुत enjoy करता हूँ म्यूजिक के साथ साथ म्यूजिक वीडियोस बनाना। मैं ही पूछूंगी कि उदित जी का रिएक्शन क्या था when this final product came out? वो बहुत इमोशनल हो गए। बहुत कम इमोशनल होते हैं पापा। आई थिंक मैं उनकी तरह हूँ कि मैं आई डोंट रियली, आप मुझे कभी भी you don't see me teary eyed, or in spite of me having done so many reality shows, हमारा एक्सटीरियर काफी स्ट्रॉन्ग है, इंटीरियर का पता नहीं, बट इंटीरियर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब मैंने उनकी आंखों में I saw him moist eyed, so मैं भी इमोशनल हो गया। एंड
and then he told me that he's proud of me. So it's the greatest gift that a child can receive from their parents, no? Their love. I think he has all the reason to be proud of you. Thank you. अगर मैं आपकी भी जर्नी की बात करूं, you had a very long span of career, spanning across so many hats that you have started wearing now. I mean, starting off as a singer when जब आप बहुत छोटे थे, and उसके बाद moving on to television and reality shows and getting into then hosting them, and of course talk about your own production also जो आप शुरू कर चुके हैं. But let's just talk about this transition that happened from a singer to reality television and then hosting it. It's almost like you blended into it naturally. We've seen you doing it and it comes to you effortlessly. Was there an anchor, a host, an entertainer always there inside you? Thank you. I'm so glad. Yeah, very sweet things you're saying about me. No, actually, yes, it just happened. You know, I know from a very young age कि मुझे music से बहुत प्यार है. वो चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी, and I think very very lucky, क्योंकि लोगों को 20, 25, 30 साल लग जाते हैं यही सोचने में कि मैं करूंगा क्या या करूंगी क्या, मैं बनूंगी क्या. मुझे बचपन से पता था कि मैं म्यूजिक या आर्ट फील्ड में जाना चाहता हूँ, एंड ऑब्वियसली म्यूजिक से मुझे बहुत प्यार था. मैं अपने पेरेंट्स को उनके रिकॉर्डिंग्स के लिए अकम्पनी करता था, एंड करते करते at a very young age I started singing. मैं 5 साल का था. I started doing 4 years, in fact I was 4 years old when I started doing live shows for Kalyanji bhai from Kalyanji Anand ji. और मेरे 4th बर्थडे पे अन्नू मलिक जी ने मुझे गाते हुए देखा. मैं कुछ 3 घंटे गा रहा था मेरे बर्थडे पे माइक लेके, तो उन्होंने मुझे गाते हुए सुना और फिर अकेले हम अकेले तुम में मुझे ब्रेक दिया. रहमान सर ने मुझे फिल्म फेयर अवार्ड्स में परफॉर्म करते हुए देखा. Then he called me to Chennai, and then one thing led to the other. Subhash Ghai sir also saw me at the Filmfare Awards performing. तो फिर उससे परदेश हुआ. बचपन में honestly I was just very happy doing what you were doing. Doing what I'm doing, and not going to school. Let's go honest. It was like it was obviously because I've completed my education, so it was like a break in between. My parents, वो हमेशा मुझे वीकेंड में काम करने अलाउ करते थे, which is very nice of them. तो बचपन तो बहुत अच्छे से बीता, and touch wood, I got to sing, I got to act, I got to do live shows. बचपन में ऐसा बहुत सुनता था मैं कि जब कोई छोटी उम्र में सफलता हासिल करता है तो बड़े होकर it's very difficult for them to kind of break out of that shell. तो मेरे पेरेंट्स भी वरिड रहते थे, मैं भी वरिड रहता था. फिर एडोलेसेंस हैपेंड, आवाज क्रैक होने लगी, तो मुझे जबरदस्ती का 5 साल ब्रेक लेना पड़ा, 4 साल था. उस दौरान मैं फिर लंदन भी गया, मैंने म्यूजिक भी पढ़ा, और फिर एक्चुअली होस्टिंग ऐसे इट जस्ट हैपेंड. मैं म्यूजिक पढ़ रहा था लंदन में, और मुझे जी टीवी से कॉल आया था, क्योंकि उनको लगा कि मैं अभी भी छोटा हूँ, उनको लगा कि मैं 10-11 साल का रहूंगा. सो दे वर डूइंग लिटिल चैंप्स, और वो चाहते थे कि मैं एज अ कंटेस्टेंट ऑडिशन करूं. तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अभी वो 18 साल का हो गया है, वो पढ़ रहा है, और he's a teenager and he's grown up. So then when they were looking for another host after Shan and Gajendra Singh, the director of the show, they left for another channel. कोई दूसरा शो करने लगे वो. तो पूरी नई टीम आई और वो नया होस्ट ढूंढ रहे थे, और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स को उस वक्त ऑडिशन किया गया था. तो मैंने भी सोचा कि चलिए अनुभव के तौर पे अच्छा रहेगा, होस्टिंग एक सीजन करके देखते हैं, अगर नंबर लग जाता है तो कुछ ऑडिशंस दिए मैंने, और उनको भी बहुत पसंद आया, और मैं भी एंजॉय कर रहा था अपने आप को. तो हमने किया एक सीजन एक्सपीरियंस के तौर पर. अब ऑब्वियसली उस वक्त ये नहीं पता था कि that season will become one of the most successful seasons in the history of Indian reality shows, and then I'm going to become a household name, and all these teenager girls are going to come and kiss me on the show. And I'm going to have such a fan following in such a young age. I think I was 18 at that time. 18 or 19 max. Way too young. Yes. तो फिर मुझे अगले सीजन के लिए बहुत पैसे भी ऑफर किए वो लोगों ने. तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, आई एम मेकिंग सो एंड सो अमाउंट, तो मैं कुछ अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकूंगा, शॉपिंग जाऊंगा, गर्लफ्रेंड थी तभी मेरी पुरानी, उसको घुमाऊंगा. तो
फिर मैंने 1-2 सीजन किए ऐसे ही, फिर करते करते आई हैड बिकम सो पॉपुलर कि मुझे सिंगिंग से ज्यादा एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे. एंड देन मैं एंड इनफैक्ट आई वाज वेरी सैड अबाउट दिस आल्सो, क्योंकि मैं सोच रहा था यार मुझे सिंगर बनना है, लोग मुझे सिर्फ एक्टर बना रहे हैं. तो जब विक्रम भट्ट जी का मुझे फोन आया तो उन्होंने बोला कि आपको हम लीड एक्टर बनाना चाहते हैं. तो मैंने बोला कि मेरी एक ही शर्त है, आप मुझे सारे गाने गवाओगे फिल्म में. अगर आप मुझे सारे गाने गवाओगे तो मैं एक्टिंग करूंगा. सो आई एक्चुअली बिकेम एन एक्टर बिकॉज आई वांटेड टू सिंग. सो लोग उल्टा करते हैं, बट मेरे केस में it was a different route altogether. And then the film unfortunately had some financial troubles, and then अच्छे से रिलीज भी नहीं हुई, चली भी नहीं. तो ऑब्वियसली जब कोई फिल्म नहीं चलती है तो जब चलती है तो हीरो की तारीफ होती है, और जब नहीं चलती है तो हीरो की बुराई होती है. तो आई रिमेम्बर कि कुछ 6 महीने फिर मेरे पास काम नहीं था. लोग people had stopped calling me and I had no work. And the only opportunities that I was being offered was on TV. तो मैं बोला कि, और तब तक मैंने घर वर भी ले लिया था, और you know how it is, EMI and this and that. I was making my own money and running my own house by then. तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं फिर पापा से पैसे मांगूं या कुछ, because I've never asked him for money after I become an adult. So I took up some work on TV again. That also didn't do very well. And then, fortunately for me, जिस शो पे मैं काम कर रहा था उसके जज संजय बंसाली सर थे. तो वहां पर मैं संजय सर से मिला और मैंने बोला कि मुझे फिल्म मेकिंग सीखनी है, अगर मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ तो it would be great and it would be great opportunity for me. तो उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ. बोले कि यार तू ऑलरेडी काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तू स्टार है, तू क्यों असिस्ट करेगा. But then he let me in to learn and then assist him on the film Ramleela में assistant बना. तो फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी असिस्ट करता था, तो वहाँ पे मैं स्क्रैचेस गाने लगा. फिर उनमें से एक स्क्रैच संजय सर को पसंद आ गया, तो उन्होंने वो गाना रख लिया, ततर ततर. और फिर मुझे एक और गाना गवाया, इश्क आऊं डिश्क आऊं. फिर जब मुझे फाइनली लगा कि चलो अच्छा है, अब मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक जो बोलते हैं ना, कि बड़ी फिल्म, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा एक्टर, सोलो सॉन्ग्स. तो फिर मुझे लगा कि अब तो मुझे डेफिनेटली म्यूजिक इंडस्ट्री में काम मिलेगा और लोग मुझे काम देंगे. फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपरहिट हुआ, गाने सुपरहिट हुए, फिल्म सुपरहिट हुई, रणवीर दीपिका सुपरहिट हो गए. इट वाज हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर, आई रिमेम्बर. तब तो मुझे डेफिनेटली लगा कि अब मैं अगर लोगों से काम मांगूंगा तो मुझे काम मिलेगा. सो आई वेंट एंड मेट ऑल माय फेवरेट कंपोजर्स, all the good composers जो मुझे अच्छे लगते थे. I think I met at least I would say 5 or 6 composers or duos जो बोलते हैं, पर मुझे किसी ने काम नहीं दिया. I didn't get any work at that time, and I was a bit shocked. I was disappointed. But more than that, I was shocked because I had honestly, मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम एक आध गाने तो मुझे मिल जाएंगे यार, इतना बड़ा गाना और फिल्म में हिस्सा होने के बाद. But that didn't happen, and then once again मुझे शोज के बहुत ऑफर्स आते थे, लाइव शोज के. तो मैं लाइव शोज करने लगा, पैसे कमाने लगा. और फिर मुझे टीवी में और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई. तो उस साल मैंने डिसाइड किया कि यार चलो अभी देखो, टीवी जब भी लाइफ में या करियर में एक डिप आता है या काम नहीं मिलता है, तो टीवी मेरे बहुत काम आता है. टीवी ऑलवेज rescues me, gives me work, gives me a platform to kind of showcase my abilities. तो मैंने उस साल डिसाइड किया कि नहीं आदित्य, अब तू बहुत अच्छा होस्ट बनेगा. You have also started coming out with your own solo albums. It's been quite some time now. ये experience अपना solo songs और albums निकालने का, has that been more soul fulfilling, or is it always you feel that your heart and soul lies more when you sing numbers for composers or in movies or in any form, I would say, even television के लिए अगर आप गाते हैं. So which has been much more of a soul fulfilling experience for you? Honestly, I think personally for me, I've always really enjoyed independent music. And हम उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जब हमारे घरों में सिर्फ MTV और चैनल भी लगा रहता था.
और दिन रात म्यूजिक चलता रहता था। दिन में हिंदी गाने सुनते थे हम लोग, रात को 10-11 बजे के बाद सारे इंग्लिश गाने होते थे। And and plus in the 90s, even indie pop was doing really well for itself, and there were so many lovely independent indie pop artists and bands. So it was not just Hindi music; it was also Hindi non-film music. And again, when there were films, like there were Hollywood films and soundtracks, there was the American music film industry. तो बचपन से ये सपना रहा है कि मुझे म्यूजिक वीडियोस बनाने हैं और खुद के एल्बम्स बनाने हैं। you see, we've grown up to Michael Jackson and his wonderful music videos. उस वक्त MTV पे प्रीमियर होते थे, जैसे फिल्म के प्रीमियर है। आई थिंक माइकल जैक्सन इज द ओनली आर्टिस्ट जिसके वीडियो के प्रीमियर मैंने देखे हैं पहली बार। तो that was always there at the back of my mind, और इसीलिए मैं लंदन भी गया। मैंने वहाँ पे इंग्लिश कंटेम्प्रेरी म्यूजिक में डिप्लोमा भी किया when I was I think 17 or 17 I think, just after my first year. And film music is amazing, I think first of all तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जो भी हैं हम, वो है। My father is whatever he is, and all the love and respect that he has is because of the film and music fraternity. So that मैंने बचपन में ही मुझे इतनी opportunities मिली to sing with sing with and sing for such amazing musicians, which was also very fulfilling experience. लेकिन मुझे जो खुशी मुझे खुद के लेबल पे, खुद के चैनल पे म्यूजिक और म्यूजिक वीडियोस डालने में होती है, वो मुझे उतनी खुशी मुझे सब जगह नहीं मिलती है। आपकी क्रिएटिविटी फ्री फ्लो करती है वहाँ पर, कुछ पाबंदी नहीं आती है। हाँ, इनफैक्ट मैं चाहूंगी, अब आपसे यहाँ दरखास्त करूंगी कि जो आपका लेटेस्ट नंबर आया तेरे बगैर, उसमें मैं आप 2 लाइनें प्लीज सुना दें। I have a couple of songs also that I'm going to be requesting you, personal favorites also. But we'll start with तेरे बगैर, उसकी 2 लाइन हो जाए। Alright, I have a very bad cold today. I don't know if you can. Okay. Sorry problem. आज नेजल हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं। I sound like Santudas Sen today. I'm pretty sure no, you'll still be sounding very well. So let's have it. बेगरज किए दुआएं सारी लग रही मुझे, आग में लिपटी हुई हवाएं सारी लग रही मुझे। तू एक बार तो मुड़ के यहाँ आजा, लेके कोई शहर हो, तेरे बगैर जीना सकेंगे हम, तेरे बगैर जीना सकेंगे हम। अगर मैं आंख बंद कर लेती तो मुझे ये पता नहीं होता कि ये आदित्य गा रहे थे या उदित जी गा रहे थे। एक पल को मुझे सच में, एक पल नहीं, आई थिंक थ्रू द सॉन्ग ऑल आई न्यू वाज कि इट इज उदित जी सिंगिंग। यू वर सिटिंग देयर। इट्स अमेजिंग कि कैसे आप अपने फादर की आवाज और बेस और पूरी, इट्स अ कंप्लीट रेप्लिका जो बाहर निकल के आया। मैं इनफैक्ट बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं पापा की तरह साउंड नहीं करूँ, because it's such an original voice, and in fact I would like to tell you that तेरे बगैर actually मैंने खुद के लिए बनाया था। जो श्रेयस कंपोजर है इसके, श्रेयस और प्रशांत जिन्होंने ये लिखा है, it was supposed to be a part of my next album, क्योंकि मैं next album में जो है कुछ इलेक्ट्रो पॉप साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था। and then Papa asked me about this desire, he expressed his desire to do this, और फिर मेरे पास ये कुछ गाने रेडी पड़े थे, तो मैंने इन गानों में से ये गाना पिक किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पापा की आवाज में बहुत अच्छा साउंड करेगा, और वो मेरी आवाज में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है गाना। सो पापा ने गाना सुना और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बोला हाँ ये करते हैं ये वो। बट मैंने उनको बोला कि मेरी एक ही शर्त है कि आपको ये गाना मेरी तरह गाना होगा। जनरली लोग उनकी स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो मैं ये चाहता था कि जस्ट टू डू समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव,
he tries and replicates my style of singing. Even though हमारी आवाजें जैसे आप बता रही काफी similar है, but हमारा जो गाने का तरीका है, how we approach a song is very different. So I said approach the song like me, and of course him being living legend, he very humbly accepted and he did it beautifully. I guess that's the reason जिसका final product आया और हम सुन रहे हैं आज गाना. One of the reasons is because it's a beautiful composition खुद में भी और उसका rendition बहुत खूबसूरती से हुआ है. Lastly मैं आपसे एक request करूंगी, which is I want you to sing a couple of songs, दो लाइनें ही भली, लेकिन वो जो आपके लिए आज तक अपने करियर में, इस long standing professional करियर में personally आपके दिल के बहुत करीब वो जो आपने गाए हैं. It would be a difficult task to pick out two, but still the ones that you hold closest and come to your mind right now. Well, there's a few, yes, definitely. देखिए हर गाना स्पेशल होता है, बट चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए. राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, ओ देखो देखो देखो, तड़ 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 Brilliant, brilliant, absolutely brilliant. And the other one. कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल. I wish हमारे पास आज और समय होता और मैं आपसे और कुछ गानों की दरखास्त कर सकती. But it's been an absolute pleasure, Aditya, having you आज आपको यहाँ शो पर, and here's wishing you all the very best for this latest number तेरे बगैर, जो इस समय already blockbuster बनने की राह पर है completely. Fingers crossed, it is going to be a great blockbuster since it's a tribute to your dad also. Our regards to your dad, Udit ji, also for this, and all our love and blessings for you for this new number. And here's hoping. It was lovely talking to you, and here's hoping we catch up again soon. Thanks, Aditya. हम मिलेंगे in person, और ये कोरोना चाचा है, ये दुनिया से चले जाएंगे तब तक. Yes, definitely. Fingers crossed for that also. Thanks once again, and bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.